ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੋ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੋ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਗੀ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀਂ, ਤੁਮ ਹੋਵੇ ਹੋ ਨਾਹੀਂ। ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣਾ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ। ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਇਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੀ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਦ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੇ ਜੋਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ, ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਤੇ ਖੁਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਚੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਈ। ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੇ ਯੋਗ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਹਿ ਬਖਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਗਾ ਕਰਨ ਢਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਇਹਡੋਏ ਨੈਣਾ ਮੱਚ ਛੂਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ, ਇਹਾ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
एक मैं बेनती करा, फिर इतनी गल शुरू करा, बड़ी तवज्जो की किस्म है। किसी चीज की पहचान करनी बड़ी सौखी हो जाती है, हौमे की पहचान करनी बड़ी औखी है, बड़ी औखी है। ये अपनी पहचान भी प्रगट नहीं हो देती ते रब की पहचान भी बन नहीं देती। हौमे असी चंगे काम कर लांगे, हुण की हो सकता है, चंगे काम कर लांगे भी हौमे खत्म हो जाए। हैरानी की गल है, हजूर कहते पैदा ही चंगे कामों च होंदी है, माड़े कामों च भी पैदा नहीं होती। बड़े लोग देखे होंगे तुसीं जिन्होंने ठेकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, शराब के ठेकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अपना सारा जीवन तबाह कर लिया, जमीन जायदाद तबाह कर ली। पर कभी किसी ने नहीं कहा ठेके वाले नूं भी इत्थे मेरा नाम लिख सजना, मैं सारी जिंदगी, सारा परिवार, सारी जमीन जायदाद इत्थे बर्बाद कर दी है। निक्की जी खिड़की दे विचों दी समुची जमीन जायदाद मेरी लंघी है, पर इत्थे मेरा नाम लिख, कदे नहीं कोई कहना। पर गुरुद्वारे च $10 भी दईए कि भावना रखने भी इत्थे मेरा नाम लिखो, इत्थे मेरा नाम लिखो। फिर हंकार कितना बड़ा तुसीं कदे वेखिओ। रब ने सोहना घर दिता है तो बंदा कहेगा जी ये गरीब की झोंपड़ी है। जदों अपने वालों कोई पैसा देगा गुरु घर च कहता लिखो जी $1.25 अपने एक नूं भी $1.25 बनाउंदा है। रब दे दिते एडे महल नूं भी झुग्गी दसदा है, रब की एडी दिती कार नूं भी निक्की दसदा है, रब दे एडे दिते कारोबार नूं भी निक्का जिहा दसदा है, गरीबड़ा जिहा दसदा है। क्योंकि अंदर जिहड़ी भावना उस अहंकार की होंदी है। गुरुदेव सच्चे पातशाह कृपा करते हैं, कहते कि भलिया मैं तेनों समझाना चाहना, तू अपने अंदरों हौमे नूं त्याग दे जे रब नूं मिलना चाहना, जे उसकी पहचान करनी चाहना। तेनों तो करते भी वो पहचान नहीं आ सकी दुनिया में, बाकी तू जिंदगी का सफर किवें तय करेगा। बेनती कर लगा सां, सहबागते ने कहते भलिया ये निरंकार का सुख जिहड़ा वो बिरला पुरख मान सकता है। ये चंगे कामां चों ही पैदा होती है। मुश्किल ये है, आ देखो चंगे कामां की एक लिस्ट है सतगुरु जी ने बख्शिश की, तीरथ बरत अर दान कर। गया तो हमें धौन सी न, तीर्थ ते मल मल के नहा के आ गया, पर जिहड़ी अंदर सी दुष्टि हौमे दी वो अंदर ही लेके आ गया। तीर्थ बरत अर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफल जाट कहे जो कुंचर इशनान। बड़ी बारी अर्ज करी दी है, हाथी जिहड़ा ना वो अपने आप के उत्ते मिट्टी पाउंदा है इशनान करन तो बाद विच। जे पहला मिट्टी पा लवे ना तो हो सकता है इशनान करे उतर जाए, वो कमला एडा मिट्टी उदों पाउंदा जदों इशनान करके आ जाता है। शायद कहती तू पहला हंकारी हो सकता है इशनान करके उतर ही जाए हंकार, पर इतने हंकारी होंदा ही मगरों है भी मैं इन्ना दान पुण्य, इन्ना तीर्थां ते इन्ने धर्म कर्म करे। हंकारी सको बाद विच होंदा है। फिर वो मिट्टी कित्थे उतरनी, उत्ते गिले शरीर के उत्ते मिट्टी सगों चुंबड़ जाती है। मैनूं माफ करियो, आम बंदे की हौमे जल्दी टुट जाती, पर धार्मिक दुनिया में रहने वाले बंदे की हौमे टुटनी औखी हो जाती। एक बार फिर बेनती है, तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जाते क्यों कुंचर इशनान। एक जसवंत सिंह नेकी ने किताब लिखी सदा विकास, कुछ एक लेख बड़े कमाल का है। वो कहने सजना इवें समझ लै, ये व्याकरण का नुकता वैसे तो जो बंदा गल करता है वो उत्तम पुरख कहते हैं, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरख होता है, जिहदी गल चले वो थर्ड पुरख होता है, थर्ड परसन तीजा पुरख होता है। पर इत्थे गल दोनों की है। जिवें दास बोल रहा है एक उत्तम पुरख है, तुसीं श्रोता रूप च सुन रहे हो, तुसीं मध्यम पुरख हो जिहदे नाल गल कीती जाए। जसवंत सिंह ने की लिखते ने, कहते रब ने अपनी किरत नूं साध के इनू मध्यम पुरख बना के
आप उत्तम पुरख बन के गल्लां कीतियां ने। कदे कदाई एक कुदरत बोलती है अरदास के रूप में, ते बहुती बारी रब बोलता है उत्तम पुरख के रूप में। कहते गुरबाणी की है सजना, गुरबाणी रब नाल कीतियां होईयां गल्लां ने। रब कदे अपनी किरत नाल गल्लां करदा है, कदे किरत रब नाल गल्लां करदी है। जदों दोनों नूं ध्यान नाल पढ़ेगा सच करके जानी तेरे अंदर दी मैल धोती जाएगी, हंकार दी, अंदरों हंकार खत्म हो जाएगा। रब दीयां गल्लां सुन के तां वेख तैनूं करते की पहचान आते। असीं तां गुरबाणी पढ़न लगे भी रब नाल गल्लां करन दी बजाय अपने आप नाल ही गल्लां करनी। जिहड़ी गल मैं कहण लगा सा, पावन बाणी दा वचन है, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबन भयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटकियो। पहले पंजा नालों तो की मुक्त होना सी, सगों अगे जाके अधक अहंग बुद्ध बाधे, सगों होर हंकारी होके बैठ गए। प्यारे इन विच मिलन ना जाई, हंकार लेके रब दे घर मिलिया नहीं जाना। मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे, जीजे बुद्ध बबीका। मालिक दे चरणां विच अरदास कर सतगुरु, हौमे वाली मत तां मेरे कोल है, पर हौमे वाली मत नाल मैं तेरे नाल मिल नहीं सकता। एक हंकारी बंदा ते एक निरंकारी बंदा, दोनों विच की अंतर है, ये आपां एक वचन रोज पढ़ते हैं। सतगुरु जी कैसी कमाल है, बराबर बराबर रख के दोनों गल्लां समझाया। एक वचन रोज पढ़ते हो, एक पासे हंकारी है, एक पासे निरंकारी है। हंकारी बंदे का हाल की है, साकट हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हौमे कंडा ही, ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जम काल सहे सिर डंडा ही। ये हंकारी बंदे की गल है। तुसीं कदे देखिओ, हुण गुस्सा ते किसी होर, दुख ते कोई होर होवे ते बंदा प्रगट कोई होर ही कर देंदा है। तुसीं इसे कारण करके हंकारी बंदे नूं देखिओ, उहनूं दुख तां अंदर चुभे हुए कंडे दा है। अंदर जिहड़ा दुख है वो चुभे हुए कंडे दा है, पर वो मनुख का वर्त विहारी वखरा हो जाता है। खिजिया होया, चिड़िया होया, उसका सलीका बदल जाता है, लोगों के नाल उसका रहन सहन बदल जाता है। हंकारी बंदे का सलीका देखकर तुसीं प्यार वाला नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उन्होंने दुख अंदर का कंडा दुख दे रहा ना, दुख तो हो रहा है पर वो समझ नहीं रहा बात को। निरंतर होमे कंडा गे, जो जो चले चुभे दुख पावे, जमकाल साहिब से डंडा गे। हुण दूजे पासे हर जन हर हर नाम समाने, हरि जे जन हरि जे नाम विच समा गए। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडा गे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा गे। ए रब्बा मैं दो तस्वीरां वेखियां ने, एक साकत दी वेखी है, एक तेरे प्यार करने वाले दी तस्वीर वेखी है। उस तो बाद विच मैं एक अरदास कर लगा। अरदास मेरी ये है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ बड़ा गे। मालिक तू बहुत बड़ा, मैनू बचा लै हौमे दे कोलों, मैनू बचा लै हौमे दे कोलों। हर राख राख बड़ बड़ा गे, जन नानक नाम आधार टेक है। मैनू तां नाम दी ही टेक है, हर नामे ही सुख मंडा गे। हरि जे नाम नाल ही परम सुख प्राप्त हो सकता है, जिहड़ा गुरु दे घर विचों मिलदा है। करें गुमान चुभे तिस सूड़ा, को काडन को नाही। अजय सो चोभ को बिल बिल लाते, नरके को पचाही। कहते दिन रात भटकना विच पिया होया, वो चोभ हंकार की तेरे अंदर, हौमे की तेरे अंदर, अखां से ऐसा पर्दा पै गया, मालिक नूं नहीं पछाण सकिया। अब अगे भी कई बार अर्ज की, अज फिर दोबारा दोहरावां।
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਰ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਗ ਖਾਧਾ। ਸਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣਦਾ। ਕੱਲਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਸੱਦਾ ਕੋਈ ਦਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਸੱਜਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਰ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਵਿਦਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਪਾਵੇ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। कबीर को ठाकुर आनंद विरोधी जात ना काहू की मानी। हंकारी होके ना रमी, मैं बहुती भेटा करना शायद रब मैनू प्यार करेगा। मैं बहुती उच्ची जात वाला रब मैनू प्यार करेगा। मैं बहुता ज्ञान वाले रब मैनू प्यार करेगा। सजना जी उदी प्रीत ना हुई तो फिर दी तलाश ही है, बस और कुछ नहीं। अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। सारी जिंदगी करता ही बनता रहा, जे करते की पहचान आ जाती ना, ये आप बंदे ही करता नहीं सी बनना, आप करता नहीं सी बनना। कबीर साहब के दो श्लोक ने, दोवें इकट्ठे ने, हैरानी की गल, दोवें इकट्ठे ने। कितनी प्यारी विचार बख्शिश की। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लाग गया। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो। जब आपा पर का मिट गया, जट देखा तत तू। कितना बड़ा प्यार होगा, मैं तू विच बदल गई। संसार हंकारी बंदे की निशानी है, वो तू कहता तू बदल जा, मैं नहीं बदलना चाहता। जिस दिन मैं बदलेगी, तू विच प्रवृत्त होएगी, तू विच तब्दील होगी, निरंकार का मिलाप हो जाए। तेनू करके की पहचान नहीं, सच करके जानियो। शब्द बड़े गहरे ने, बहुत बड़े सिद्धांत पक्ष नूं पेश करते हैं। जिन्होंने लोगों ने मनिया सी भी ब्रह्मा करता है, सब कहते तेनू करते भी पहचान ही नहीं भलिया। कोई जो जिसे अंबर तारे, किनू कोई चीते चीतन हारे। कौरे पंडित अंबर काशो लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। कहते तेनू करते भी पहचान होगी, फिर तू करता रब नूं मनदा, फिर तू करता कबरां नूं ना मनदा, फिर तू करता निक्कियां निक्कियां
ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੁਗੈ ਜੁਗੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵੇ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੀਵਡ ਅਮਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਕੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ करते के। ऐश करते दी गुण गाना में, ऐश करते दी गुण गाना में। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई जरा सारिया नूं जानता है। सिख इतिहास में एक बड़ा सुनहरी लिखण में लिखिया ना है खड़क सिंह का, सरदार खड़क सिंह महान योद्धा होया। बड़ियां आज़ादी दी लड़ाइयां विच उन्हें हिस्सा लिया। उन्हें मैं निक्का जिहा दृष्टांत देने लगा। तरन तारण साहिब की धरती ते एक एजुकेशन नाल संबंधित कॉन्फ्रेंस होनी सी। सवाल खड़ा होया भी इस वेले इहदी प्रधानगी कौन करे। फैसला होया खड़क सिंह नूं प्रधान बनाइए। खड़क सिंह नाल प्रबंध संबंध कायम किया गया, प्रबंध किया गया। खड़क सिंह आए नहीं। कौम दे विच एडा प्यार सी क्योंकि वो साकियां दे समय का वक्त का समा बहुत बड़ी हिलजुल सी। ते खड़क सिंह आए जदों सिख कौम खड़क सिंह नूं लैण गई तरन तारण साहिब रेलवे स्टेशन के उत्ते 7 घोड़े एक बग्घी नूं जुड़े हुए। बग्घी इवें शिंगारी दुल्हन वांगू सारा शहर शिंगारिया पिया। खड़क सिंह का बड़ा सन्मान सी ते जयकारियां नाल आकाश गूंज उठिया। हार पा दिते, बहुत प्यार किया। आखिर कह लगे भी तुसीं इस बग्घी ते बैठो ते असीं सारे तुहाडे नाल तुर के जा रहे हैं। पता लगे भी सिख कौम का कोई नुमाइंदा है। अखां च पानी भर आया। कह लगे भलियो तुसीं ये क्यों भुल गए भाई मैं खड़क सिंह गुरु के कारण है। जिस गुरु के दरबार में चले हैं उत्थे बग्घियां ते गयां दा मुੱਲ नहीं पैंदा, उत्थे हंकारियां दा मुੱਲ नहीं पैंदा, उत्थे निमरता वालियां दा मुੱਲ पैंदा। वास्ता जे रब दा मैं हंकारी नहीं बनना चाहता, करते पुरख की पहचान ही नहीं होनी। मैनूं तां मालिक दे चरनां विच निमाणा हो के जाण दिओ। बग्घी खाली मोड़ दी। कह लगे सतगुरु हुण अज इस हंकार की इहो ही सजा है। जोड़ा भी ला दिता, नंगे पैरी संगत मगर है। सिख कौम का नुमाइंदा लीडर उस वेले का तरन तारण साहिब नंगे पैरी जाके गुरु के चरणों से ढह पिया, रज के रोया। सहदा एक कृपा करी अपने दर का सेवक बना के रखे। असी करते नूं भुल गए, परमेश्वर नूं भुल गए, निरंकार नूं भुल गए। हाथ जोड़ बेनती करा प्यार वालिओ, सतगुरु ने बख्शिश की है। हमें दीर्घ रोग है, यदि दवाई गुरु शब्द विच है, होर कोई इहदा इलाज नहीं। हमें दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी गुरु का शब्द कमाए। आओ सतगुरु ने कृपा की है, बड़ी प्यारी दात बख्शी। पंक्तियां 2-2 के श्लोक ने। हैरान हो जाइए जो श्लोक नूं पढ़ी तो किड्डे किड्डे सदियां के फलसफे नूं उल्टा के रख दिता। जिन्हों करते पुरख की पछाण होगी वो किवें कबरां नूं पूजेगा।
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਨਾਵਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ, पूजन को बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की से। वो कदे किसी को भटकेगा नहीं। हो तो एक रमैया ले हो, आन देव बदलावन दे हो। मैनू किसी की परवाह नहीं, मैनू तो करते पुरख की पहचान आ गई। वक्त नहीं अपने को। मैं बेनती करा, कितनी बड़ी गल भगत नामदेव जी ने आखी, चाहे मंदिर च धक्के मारे ने ना, आज ना मैं बिठुल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे, जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा सी भी मैनू ब्रह्म दा पता, मैं तुहानूं दसना, उहनूं कहण लगे मैं रब देखिया कि मैं मूर्ख तैनूं समझाउण वास्ते आया। जिन्हें रब की पहचान कर ली, कोई परवाह नहीं किसी किस्म की। श्लोक की सादी जी विचार, जे प्राणी। मैं पिछले दिनों च भी बेनती करता आया, गुरु तेग बहादुर साहब की बड़ी कमाल है। शब्द वो वरतते हैं जिहड़ा धर्म की बुक्कड़ विच कैद नहीं है। प्राणी शब्द का अर्थ होंदा है साह लैण वाला जी। हुण कोई भी है, भावें किसी भी देश का वासी, कितों का भी है। जे प्राणी होमे तजी, तजी का मतलब छड्ड देना। जिस भी प्राणी ने, जिस भी मनुख ने, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਕਰਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिथों गुरु नूं लभना सी उत्थे भी मैं लभ के तुर जांदा। साहिब आखते ने, जे प्राणी होमे तजी, करता राम पछाण। मैं हैरान होना कई बारी, कितनी सतगुरु की कितनी साडे ते कृपा है। मूल मंत्र 33 बारी गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विच संपूर्ण रूप च है, और 33 ਦੇ 33 वारी पहले अंक तो लैके परिभाषा दी हुई है। किहड़े रब की गल कर लगा? वो एक ओंकार सतनाम। अगला शब्द की है? करता पुरख। फिर भी तेन करते की पहचान। कितनी बारी समझाया करता कौन है, फिर भी तेन करते पुरख की पहचान नहीं। रोज पढ़ते तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई छीची, जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी, तू कितना बड़ा करता है, तू सब नहीं ध्याया, जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुझ आप विछोड़िया आप मिलाया। कहो नानक वो मुक्त नर। ओ नर, वो मनुख मुक्त है, उन किसी का कोई बंधन नहीं। वो बंधन मुक्त है, वो मनुख। ये मन साची मान। मना तेनू बड़े लोग कहणगे भी मुक्त ये मनुख हुंदा है, मुक्त इस तरह के कर्म करने वाला होता है। दूर कहने मेरी गल नूं सच्ची करके मान ली, मैनू पता है। हालांकि मैं पहले पन्ने से लिख दिता भी आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु झूठ नहीं बोलता। गुरु तो सानू कहते बोली है सच, धर्म झूठ ना बोली है। पर फिर भी मैं तेन जोड़ दे के कहना ये गल नूं सच्ची करके मान ली। मैनू पता भी तू गुरु की गल भी झूठी मान लेना, ताई तो देहधारियों के मगर लग जाते हैं, ताई तो पखंडियों के मगर लग जाते हैं। जे गुरु की गल सच्ची करके मनी होंगी तो क्यों भटकते फिर असीं। साहिब आखते ने, ये मन साची मान। मना इस गल नूं सच्ची करके मान लै। जिन्हें हमें तज दी उन्होंने करते पुरख की पछाण आ गई। जिन्होंने करते पुरख की पछाण आ गई वो नर मुक्त हो गया, उन्होंने किसी तरह की भी भटकना नहीं। गुरु कृपा करे, गुरु तेग बहादुर साहब जी के इन्हां बचनों की रोशनी विच आपां अपने जीवन को विचार सकीए, हौमे का त्याग करिए। फिर साडा जीवन ये लोक सुखीए परलोक सुहेले
ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਮੇਲੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।